Good evening, everyone. Welcome, 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 everyone. Good evening. It is lovely to have all of you in the room on a Thursday evening at 9 p.m. Welcome, everyone, and please turn on your cameras here. I am CA Achal Junjunwala from My CA Mentor, and I am super excited to have all of you in the room with me. Yes, I can see a lot of you are already chatting with me in the group chat, in the Zoom chat, which is amazing. Tell me, where are you all joining in from? कहाँ से students join कर रहे हैं? Tell me यार, जल्दी जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी बता दो in the chat box. Where are you all joining in from? Okay, I am. Yes, I can see Varanasi, Ahmedabad, Lucknow, Rajasthan, Patna, Churu, Rajasthan, Rewari, Haryana, Pune. Where else? Where else? I can see Baramati, New Delhi, Haryana, Jaipur, Satara, Lucknow, Patna, Punjab. Wonderful. Jaipur, I can see people are joining in from all over the country, which is amazing. Some people have asked me the question, is this meeting live on YouTube as well? Yes, this is being live streamed on YouTube as well. Last में हम आपको YouTube की भी लिंक दे देंगे जहां पे आप जाके रिकॉर्डिंग जरूर देख सकते हैं. Okay. And I can see some of the boys have turned on their cameras. Thank you, boys. This happens very rarely. Usually girls are tagged कि हाँ भाई कैमरा पे आती है, बड़ी सिंसियर होती है. बट आई एम वेरी हैप्पी कि यहाँ पे सारे लड़कों ने turn on किया है camera, which is amazing. Please, girls, we are not supposed to be left behind. Turn on your cameras, yeah. I would love to see a few of you on camera. It will be amazing. मान लो अगर पूरा वेबिनार मैं ऐसे करूं, दिखूं ही नहीं, सिर्फ मेरी आवाज सुने, मजा आएगा क्या? नहीं ना? तो प्लीज आ जाओ, तुम भी कैमरा पे आ जाओ, सो दैट वी कैन सी यू, इंटरेक्ट विथ यू, एंगेज विथ यू, एंड इस 1 घंटे को मजेदार बनाते हैं. अगले 1 घंटे हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट टैक्स सब्जेक्ट की, राइट? तो कितने लोगों को डायरेक्ट टैक्स से डर लगता है और किसका डायरेक्ट टैक्स फेवरेट है? टेल मी इन द चैट बॉक्स. फेवरेट के लिए F डाल दो और डर के लिए D डाल दो. चलो जल्दी 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 जल्दी. F फॉर फेवरेट, D फॉर डर. ओके, F F F F की संख्या ज्यादा है, आई मस्ट से कि फेवरेट्स बहुत ज्यादा है यहाँ पे. बट हाँ, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको डायरेक्ट टैक्स से डर लगता है. यस, विजू भैया आ रहे डर हटाने, कुछ लोग कह रहे हैं. विजू सर ने बहुत अच्छा बताया. ओके, ग्रेट. सो a lot of you already know our speaker for today. Tell me in the chat box, how many of you here already know who is our faculty, how great he is? You know him. Tell me in the chat box. Come on, tell me, me in the chat box. जल्दी 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 बताओ. Me. Yes, superb. So you already know him, which is amazing. That's great, great, great. सही है. चलो, इसी बात पे मेरे को एक और information दे दो. He is already in the room. It's just that you can't see him. He is reading all your messages. ठीक है, तो tell him in the chat box which when is your attempt, and आप CA इंटर में हो, CA फाइनल में हो, which level of CA exam and when is your attempt? Tell us in the chat box. Come on. November 24, okay, Jan, September. September attempt students are in the room. Okay, a lot of you are in September attempt. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. सो ये कुछ लास्ट मिनट स्ट्रैटेजीज पे भी हम बात करेंगे, बिकॉज बहुत सारे बच्चे सितंबर के भी हैं. May 25, Jan 25. ओके, कुछ CMA वाले स्टूडेंट्स भी है. ओके, इंटरेस्टिंग. That's interesting. Okay, inter CA September. चलो, I want everyone to respond in the chat box यार. तुम CA इंटर में हो, CA फाइनल में हो, तुम्हारा अटेम्प्ट कब है? That will allow us to curate the webinar for you, so that हम तुम्हारे अटेम्प्ट की, तुम्हारे लेवल की बातें करें. ओके, तो टेल मी इन द चैट बॉक्स. कम ऑन, सितंबर इन इंटर CA सितंबर, इंटर CA सितंबर, इंटर CA जैन. सितंबर 24 वाले मेजोरिटी है. हाँ, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है. CA इंटर सितंबर, नवंबर 24. ओके, CA फाइनल वाले भी है यहाँ पे. ठीक है, चलिए. तो आप में से काफी सारे बच्चे ऑलरेडी CA विजय शारदा का नाम जानते हैं. ही इज अ वाइडली अक्लेम्ड एज वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक and dedicated faculty members in the field of CA education.
His passion and commitment to teaching have made him the most preferred faculty for both CA Inter and CA Final, और उसका प्रूफ आज हमारे साथ है। CA इंटर और CA फाइनल दोनों के ही स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद है with a unique and innovative teaching style and techniques. He simplifies complex concepts. How many of you here agree that विजय सर कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को लेके सिंप्लीफाई कर देते हैं? कम ऑन, से यस इन द चैट बॉक्स, जल्दी 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 से यस 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 in the chat box. Okay, yes, a lot of you believe in this. So आज हम उनसे काफी सारी सिंपल स्ट्रैटेजीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जहां पे he will make sure that we clear our direct tax paper with the highest marks. Okay, so everyone please make a loud cheer in the chat box for CA Vijay Sharda. Let's make a loud cheer in the chat box. Type welcome sir, yes, in the chat box. Super. Welcome Vijay sir, how are you? So I have just sent you the request to unmute, and Mohit, please host bana dijiye so that you can mute and unmute at his convenience. Yeah, hi. Hi, ma'am. Am I audible? Yes, sir, you are. Hello and welcome, everyone. I am here with Achal, ma'am, and it's been an honor to be with ma'am and sharing this particular screen with the ma'am. And बच्चों बहुत 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 सारा प्यार, बरसाते हुए बादल के पुणे से बहुत 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 सारा प्यार आपको। आई एम श्योर आप लोगों ने देखा होगा पुणे के अंदर में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, और बहुत मतलब यहाँ पे 8 दिन हो चुके हैं, बारिश रुक ही नहीं रही है। आई एम श्योर ये बारिश आपके लिए बहुत सारा लक लेकर के आए, बहुत सारे वेल्थ एंड हेल्थ लेकर के आए। एंड यस, वी आर हियर फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहूंगा पूरी टीम को, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि आपका 16 मार्क को सिक्योर करने के लिए सेमिनार लेके आए। आज जितने भी बच्चे सेमिनार को सुन रहे हैं ना, मैं कहूंगा आपसे कि प्लीज आप एक पेन और पेपर लेकर के जरूर बैठिएगा, ताकि आज जितने डिस्कशन हम लोग करें ये सारे आप नोट डाउन करें। बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल ग्लिच मैं यहाँ पे कुछ स्क्रीन शेयर करना चाह रहा था, बट वो हो नहीं पा रहा है बिकॉज यहाँ पे इंटरनेट जो है वो बहुत स्पीड में फ्लक्चुएट हो रहा है बिकॉज ऑफ द नेटवर्क इशू। पुणे में एक्चुअली रेड अलर्ट जारी हुआ हुआ है, बहुत बरसात हो रही है, तो मैं कुछ शेयर करना चाह रहा था पर वो नहीं हो रहा है। बट आई एम श्योर कम्युनिकेशन हमारा रुकेगा नहीं, हम इस माध्यम से भी कम्युनिकेट करते रहेंगे। यस, सो सभी लोग पेन एंड अदर चीज लेकर के बैठ जाएं। जिसका भी अटेम्प्ट सितंबर में है और जिसका भी अटेम्प्ट जनवरी में है, हम दोनों के लिए बातें करने वाले हैं, तो रिलैक्स, हम सब बातें करने वाले हैं आज, ठीक है? एंड कुछ लोगों का रिकमेंडेशन था कि एयरपॉड्स भी लगा लीजिए क्योंकि सर आने वाले हैं, तो यस, एयरपॉड्स भी लगा लीजिए क्योंकि सर आने वाले हैं, सर आ चुके हैं। तो यस, मजा आने वाला है अगले 1 घंटे। लेट्स मेक इट द मोस्ट प्रोडक्टिव। आप सभी ने गूगल फॉर्म भरा है, आपके सारे क्वेश्चंस मैंने कंपाइल किए हैं। आई एम गोइंग टू आस्क दोस क्वेश्चंस ऑन बिहाफ ऑफ आवर स्टूडेंट्स सर, एंड एक एक करके हम सारे 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 क्वेरीज को टैकल करेंगे। एंड लास्ट का 10 मिनट्स अगर इंटरनेट ने साथ दिया तो वी विल डू अ लाइव Q&A एज वेल। सो गुड टू गो सर? यस मैम, परफेक्ट। ऑल राइट, सो लेट्स बिगिन सर। तो सबसे पहले सर हम एलिफेंट इन द रूम उसी को केटर कर लेते हैं कि जब डायरेक्ट टैक्स में लेंदी क्वेश्चंस आते हैं तो उसको कम टाइम में कैसे सॉल्व किया जाए। परफेक्ट मैम, आंसरिंग टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, देखिए ये हमेशा कहा जाता है कि कितने भी बड़े हाथी को एक छोटी सी चींटी ही परेशान कर देती है। हमें भी बस कुछ ऐसा करना है, उन छोटी छोटी चींटियों को कलेक्ट करना है। आई मीन टू से, सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आता है ना, सब जानते ही हैं, मैं बहुत प्यार से कहूंगा, आप बस कुछ अलग मत समझना। जब भी देखो पहले नीचे देखो। आई मीन टू से, जब भी देखो आप सबसे पहले क्वेश्चन के नीचे देखो कि व्हाट इज द क्वेश्चन अबाउट। अब देखिए इंस्टीट्यूट रिसेंटली क्वेश्चन को ना बड़े क्लियर कर देता है। कोई भी क्वेश्चन जब आप लेंदी क्वेश्चन देखते हो, पहले 5 पॉइंट ना आप लिख करके रख लो। पहला, असेसी कौन है, क्योंकि इससे आपको टैक्स रेट समझने में बहुत आसानी होगी। तो द फर्स्ट पॉइंट यू शुड लुक एट टू द क्वेश्चन इज असेसी। जैसे अगर विजय दिया है नाम, या लेट्स से कोई और नाम दिया है, तो कंपनी दिया है, फर्म दिया है, व्हाट, क्योंकि इनसे टैक्स रेट और सरचार्ज बदलने के पूरे चांसेस है। दूसरी चीज, एज देखो इफ एनी। अगर इंडिविजुअल दिया है तो फिर आप एज देखो, क्योंकि इससे भी स्लैब रेट में चेंज आ सकता है। तीसरा, रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट देखो।
राइट, आई मीन टू से, क्योंकि इससे भी आपका आंसर चेंज हो जाएगा, राइट। चौथी चीज जो आपको देखना है अब न्यू स्कीम के हिसाब से भैया, इज ही ऑप्टिंग और नॉट ऑप्टिंग फॉर 115 बीएससी। दिस विल हेल्प यू टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग मैंने डिडक्शंस लेना है, मैंने डिडक्शंस नहीं लेना, मैंने कौन से हेड में किस तरीके से कंप्यूटेशन करने हैं, मैंने सेट ऑफ करना है नहीं करना है। इसके बाद आपको देखना है आपको ग्रॉस टोटल इनकम कंप्यूट करनी है या टोटल इनकम कंप्यूट करनी है। मतलब ये फिफ्थ पॉइंट होगा जो आपको चेक करना है कि मुझे ग्रॉस टोटल इनकम चेक करनी है या टोटल इनकम। क्योंकि देखो अगर ग्रॉस टोटल इनकम आपने बनानी है, सो देयर वुड बी ओनली 6 वर्किंग नोट, 5 हेड की, और एक जो वर्किंग नोट बनेगी वो बनेगी आपकी क्लबिंग या सेट ऑफ को एडजस्ट करते हुए, दैट इज कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम की। बट अगर आपका ये क्वेश्चन टोटल इनकम का होता है तो ऐसे केस में आपकी 7 वर्किंग नोट बननी चाहिए, 7 वर्किंग नोट्स बननी चाहिए। तो पेपर का जो सॉल्विंग पैटर्न होना चाहिए ना, आप जैसी आंसर शीट लिखना चालू करेंगे, फर्स्ट पेज जो है ना ये बिल्कुल ब्लैंक छोड़ दे, और जो वर्किंग नोट बनानी है वो सेकंड पेज से बनाना चालू करें। जैसे कि या जब एग्जामिनर पेपर ओपन करे तो उसका क्वेश्चन क्या होगा, उसका क्वेश्चन सिंपल है, कंप्यूट टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। तो उसको फर्स्ट पेज पे ही आपका कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम दिखना चाहिए, एंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द पेपर उनको टैक्स लायबिलिटी दिख जानी चाहिए। इन सारी चीजों को वर्किंग नोट देते हुए आप पीछे क्या कर दीजिए, जैसे आपने लिखा इनकम फ्रॉम सैलरी, तो आप पीछे रेफरेंस देंगे इनकम फ्रॉम सैलरी वर्किंग नोट नंबर 1। देखो कंटेंट समझना जितना इंपॉर्टेंट होता है ना, उसका प्रेजेंटेशन करना भी उतना ही अच्छा होता है। छोटा सा एग्जांपल दूंगा, अंबानी जी की शादी में नई बहू ने फूलों का ही ड्रेस पहना था। अब फूल तो फूल थे, पर प्रेजेंटेशन इतना बड़ा मैटर करता है, क्या है दिखने में अच्छा लगना चाहिए, बाकी सब तो सेम ही है, दिखने में अच्छा होना चाहिए, सिंपल सा रूल ये है। तो बस आपको भी क्या करना है, दिखाना बहुत अच्छा है। पेपर चालू होते ही कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, अब कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम करते वक्त मैं आपके दिमाग में कुछ चीज डाल देता हूँ, सेट कर लो। पर्टिकुलर्स और 3 कॉलम्स बनाओ, आई रिपीट पर्टिकुलर्स एंड 3 कॉलम्स बनाओ। इससे क्या फायदा होगा, जैसे आपने इनकम फ्रॉम सैलरी लिखा इनर कॉलम में, राइट, इनकम फ्रॉम सैलरी लिखा इनर कॉलम में, एचपी लिखा इनर कॉलम में, पीजीपीपी लिखा इनर कॉलम में। अब अगर आपको कोई सेट ऑफ वाला एडजस्टमेंट होगा ना, वो सेकंड कॉलम में हो जाएगा। मतलब आपने इनर कॉलम में इनकम लिखा, सेट ऑफ सेकंड कॉलम में हो जाएगा, और ये दोनों एडजस्टमेंट करने के बाद जो नेट इनकम है ये आपके थर्ड कॉलम में चल जाएगी। यानी आंसर शीट का जो फर्स्ट पेज होगा, इसका फर्स्ट हाफ पर्टिकुलर्स रुपीज 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 का कॉलम होगा, इसका जो नेक्स्ट हाफ होगा ये होना चाहिए कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी में आपका मेंशन बड़ा क्लियर होना चाहिए, एज पर 115 बीएससी और एज पर द ओल्ड स्कीम, जो भी आपको क्वेश्चन पेपर में दिया होगा। एंड बिलीव मी आपको क्लियर कट लिखा होता है, अगर एग्जामिनर का व्यू है कि आप दोनों के हिसाब से सॉल्व करो तो वो भी आपको बड़ा क्लियर कट लिख के दिया जाएगा, ये इंस्टीट्यूट की तरफ से क्लियर हो चुका है, बराबर है। अच्छा जी, अब आपने वर्किंग नोट बनानी है, जैसे आपने बनाया इनकम फ्रॉम सैलरी वर्किंग नोट नंबर 1, या फाइनल के केस में कैपिटल गेन पीजीबीपी व्हाटएवर, हेड्स तो खैर कॉमन है, सिर्फ सेक्शन ऊपर नीचे है। नेक्स्ट पेज में आप जाएंगे, एक एक वर्किंग नोट बनाइए, सैलरी, एचपी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। डिडक्शंस का आपको तभी बनाना है जब क्वेश्चन टोटल इनकम का हो, अदरवाइज वहां दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये लगभग लगभग 3 से 4 पेज तक के चलता रहेगा, राइट। पेपर का बिल्कुल टेंशन मत लेना, आपने पूरी फीस भरी है तो आपको कोई रोकेगा नहीं, तो पेपर का टेंशन बिल्कुल मत लेना, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सॉल्व वन हेड एट अ टाइम, आई मीन टू से, सबसे पहले ना प्रॉब्लम को आप ऊपर से नीचे तक देखो। पहले 5 एडजस्टमेंट जो मैंने आपको बोला, नेम, रेसिडेंशियल स्टेटस, एज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब आपने कर लिया ना। उसके बाद आप देखो कि भैया पांचों हेड में से कौन कौन से हेड आपको दिए हुए हैं, क्योंकि देखिए जनरली ऐसा नहीं होता कि पांचों के पांचों हेड आपको दे दिए जाए। द मोस्ट कॉमन हेड विच दे आस्क इज एचटी, पीजीबीपी, आईएफओएस, या फिर कैपिटल गेन, आईएफओएस डिडक्शन, ये दो जनरली दिए जाते हैं। तो आपको वन एट अ टाइम पकड़ना है, वन एट अ टाइम पकड़ना बहुत जरूरी है। दैट इज पीजीबीपी अगर आ रहा है तो आपने पीजीबीपी जिस तरीके से सॉल्व करते हैं बिल्कुल उस तरीके से। तो अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन जब आप पढ़ते रहोगे तो क्वेश्चन के अंदर ही आपको मेंशन कर देना है कि हाँ पीजीबीपी है, तो एक एक वर्ड आप सिलेक्ट कर लो, जैसे सैलरी से एस, एचपी से एच, पीजीबीपी से पी, कैपिटल गेन से सी, एंड आईएफओएस से आई। अब क्या कर लो, आप क्वेश्चन रीड कर रहे हो तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, हिंट तो आई जाएगी कि भैया ये कहाँ से रिलेट करता है। तो आप उसके बाजू में एक शॉर्ट पॉइंट डाल दो, और शॉर्ट पॉइंट डालने के बाद आपने क्या करना है, एक एक पॉइंट वहां से सिर्फ पिकअप करके अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट्स आपको करनी है, राइट। जो एडजस्टमेंट आपको क्लिक ना हो फर्स्ट केस में उसको पेंडिंग रखो, उसको डबल पी मेंशन कर दो, दैट इज पेंडिंग पॉइंट। आप इसको डबल पी मेंशन कर दो, पेंडिंग पॉइंट के अंदर में रख दो, और लास्ट में जाकर के आप ये देखो कि आपका मिसिंग लिंक किधर है। दो बातें आपको और अच्छे से याद रखनी है, हर
हेड के वर्किंग नोट बनाने के बाद आपको 3 स्पेस ब्लैंक छोड़नी है अगर कोई अजम्पशन वहां पे लिखना है तो इसके लिए। जैसे कि अगर आप सैलरी में होते हैं और गिफ्ट 5000 के ऊपर होता है तो यहाँ पे आईसीएआई मल्टीपल आंसर देता है। अगर पीजीबीटी के अंदर में देखा जाए तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड आपको अजम्पशन लिखने होते हैं, तो ये अजम्पशन उसी के नीचे लिखो ताकि एग्जामिनर आपको जो मार्क्स दे वो उस अजम्पशन के बेसिस पे दे दे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्किंग नोट बनाना बिल्कुल मत भूले। वर्किंग नोट फॉर्म्स पार्ट ऑफ योर आंसर, ये खुद इंस्टीट्यूट भी बोलता है। और मैं तो हमेशा कहता हूं देखो आंसर 3 प्रकार के होते हैं, राइट रॉन्ग आईसीएआई। करना आपको वही है जो आईसीएआई ने कहा है। तो आईसीएआई भी अगर तुरंत वर्किंग नोट देता है तो यू हैव टू मेंशन दैट वर्किंग नोट ओवर देयर ओनली। यस और नो? तो इस तरीके से आपको सबसे पहले जो बड़े क्वेश्चन है उसको तोड़ना है। अब दो बातें बड़े इंपॉर्टेंट बच्चे जो यहाँ पे पूछते हैं, सर क्या मैंने सेक्शन नंबर भी कोट करके आना है? अंडरस्टैंड, इफ यू आर इन फाइनल और यू आर इन इंटर, यू मस्ट बी नोइंग दैट लर्निंग द सेक्शन इज अ कंप्लीट फुटाइल एक्टिविटी, आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ सेक्शन मेंशन करके आओ, nowhere the institute says that they will give the paper and it is expected of the student that they will check the section number। अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट है तो लिखे, नहीं तो एज पर द प्रिस्क्राइब इनकम टैक्स एक्ट, खुद एक्ट में भी यही वर्ड यूज होता है, तो प्रिस्क्राइब इनकम टैक्स एक्ट वर्ड आप यूज करके आए, कोई तकलीफ नहीं है। इनकम टैक्स का थ्योरी पॉइंट भी कई बार वो लोग पूछते हैं, जैसे टोटल इनकम का कोई क्वेश्चन होता है ना, तो ये लोग क्या करते हैं आपको थ्योरी पॉइंट भी पूछ लेते हैं। व्हाट इज योर एडवांस टैक्स लाइबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू दैट, व्हाट इज योर टीडीएस रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू दैट। जब आप थ्योरी लिख रहे हैं मेक श्योर करिएगा बड़े प्रॉब्लम में थ्योरी टू द पॉइंट होनी चाहिए। मतलब आप ये मत बताइए टीडीएस इज समथिंग पेयर हैज टू डिडक्ट एंड पे हैज टू डिडक्ट देन ही हैज टू डू। जितना पूछा उतना ही जवाब दे, सीधे शब्दों में जितने पैसे उतना ही काम, फुकट की एडवाइस हमने देनी बंद कर दी। इस तरह से आपको काम करना है। So that is how total question needs to be worked out. Absolutely. No, and I think ये आंसर सुनने के बाद a lot of students would have taken a sigh of relief। जो आपने एक एंसिलरी क्वेश्चन भी आंसर कर दिया सर, सेक्शंस वाला, जो कि अभी आता है हमारे इसमें कि सेक्शन नंबर याद रखना है कि नहीं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी अच्छा लग रहा होगा कि हाँ भाई सेक्शन नंबर नहीं याद रखना है। तो दैट्स अमेजिंग सर। नहीं मैम, at final level also I'm saying, not just for inter level, at final level also nowhere you are, see understand there are on paper there are 298 section, but आप सब लोग ने एक बार भी टैक्स पढ़ा होगा तो आप सबको समझ में आ गया होगा there are more than 758 section। It is illogical to learn the section number। हालांकि मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूं कि आप लोगों ने अगर अपने से पढ़ा होगा तो आपको सेक्शन नंबर ऑटोमेटिकली कई चीजों के याद हो गए होंगे। ठीक है, याद है तो लिखो, नहीं याद है तो मतलब बर्डन लेकर के मत चलो लाइफ के एग्जैक्टली अंदर। हाँ, आई मीन यस मैम। ब्राउनी पॉइंट्स मिलेंगे, बट ऐसा नहीं है कि पास होने के वादे हो जाएंगे अगर तुम सेक्शन नंबर्स नहीं लिखोगे तो। एनीवे सर, यहाँ पे हमारे पास ना जनवरी अटेम्प्ट के भी स्टूडेंट्स हैं, तो लेट्स एक्चुअली डिस्कस अ लिटिल बिट अबाउट देम। कि अगर कोई अभी अभी डायरेक्ट टैक्स से इंट्रोड्यूस हुआ है, कि डायरेक्ट टैक्स क्या है वो अभी अभी देखा है, जनवरी में एग्जाम है, तो व्हाट शुड बी द डेडलाइंस फॉर देम कि डायरेक्ट टैक्स को कैसे अप्रोच करना है, कब तक खत्म हो जाना चाहिए, रिवाइज कैसे करना चाहिए, हाउ टू लिटरली अप्रोच डायरेक्ट टैक्स इफ योर एग्जाम इज इन जनवरी 25। नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, अगर मैं अज्यूम कर लूं कि 1 जनवरी को एग्जाम इंस्टीट्यूट आपका देता है, तो टू बी वेरी प्रिसाइज 162 डेज यू हैव इन योर हैंड, बराबर है। जबकि स्पेसिफिकली डायरेक्ट टैक्स कैन बी कंप्लीटेड अलोंग विद 300 प्रॉब्लम्स इन 60 डेज ओनली। 60 डेज के अंदर में आपका डायरेक्ट टैक्स का बैच खत्म हो जाता है अलोंग विद 300 प्लस प्रॉब्लम। और अगर आप फाइनल के अंदर में है तो आपका जनवरी अटेम्प्ट हो ही नहीं सकता, या तो आपका नवंबर में है या तो आपका मई में है। अंडरस्टैंड कीजिएगा, राइट। सो अगर आपका नवंबर है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप रेगुलर क्लास को ना जाते हुए आपने फास्ट ट्रैक की तरफ मूव करना चाहिए, क्योंकि फाइनल में 53 टॉपिक्स है जो रेगुलर के कंप्लीट हो ही नहीं सकते। एज फार एज इंटर इज कंसर्न, आपके पास बहुत भरपूर टाइम है, आप बहुत अच्छे से रेगुलर क्लास कंप्लीट कर सकते हैं, तो आपने रेगुलर क्लास करना चाहिए। ये रेगुलर क्लास मैं अज्यूम करता हूं अगर हम कल से भी चालू करते हैं, टिल आपके हाथ में 100 डेज बचेंगे एग्जामिनेशन के। इस 100 डेज में से आप और 20 डेज भी दे देंगे फॉर द पर्पज ऑफ प्रैक्टिस, तो आप अच्छे से 300 प्रॉब्लम क्लास में प्लस 200 प्रॉब्लम प्रैक्टिस के करके आसानी से आप कंप्लीट कर सकते हो। मैक्स टू मैक्स अगर आप सितंबर अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो लगभग 10 अगस्त के आसपास आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए एज फार एज पीटी इज कंसर्न। जीएसटी मिला करके मैक्स टू मैक्स 17 अगस्त तक का आपका लास्ट डेट होना चाहिए।
उसके आगे आपने डीटी एंड जीएसटी दोनों नहीं पढ़ना चाहिए। जीएसटी को आपने देखा होगा मैंने टाइम कम अलॉट किया बिकॉज इट इज मोर इजी एज कम्पेयर टू डीटी, वहां पे जितने प्रोविजन है। अगर आप जनवरी अटेम्प्ट दे रहे हैं तो इट इज एक्सपेक्टेड बाय सितंबर एंड आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। मैं सितंबर एंड बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ क्योंकि इसमें एक पेपर भी आ जाएगा। तो अक्टूबर वो टाइम होना चाहिए जब आपने पिछला एक पेपर और सितंबर का एक पेपर दोनों मिला के एक बार प्रैक्टिस करनी चाहिए इफ यू गेट कंप्लीट योर डीटी। तो एक रिवीजन आपका सितंबर एंड तक के हो जाना चाहिए। नेक्स्ट रिवीजन जो है ये आपने 10 से 15 दिसंबर के बीच में उठाना है और 10 से 15 दिसंबर के बीच में टैक्सेशन का पार्ट खत्म कर देना है। देन एंड ओनली देन इट इज अ परफेक्ट प्लान। राइट, एब्सोल्युटली। सो सर ने ऑब्वियसली आप लोगों को अप्रोच रिवीजन की स्ट्रैटेजी भी बता दी है। जस्ट अ क्विक वन फ्रॉम माय एक्सपीरियंस व्हेन आई वाज अ सीए स्टूडेंट। तो डायरेक्ट टैक्स ऑब्वियसली इट इज एन ओशन वाला सब्जेक्ट, 2000 पेजेस के तो सिर्फ नोट्स होते थे उसमें। तो साइक्लिकल रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेदर यू आर इन सितंबर, नवंबर, जनवरी, जब भी आपका एग्जाम है। तो जिस दिन आप सर से पढ़ रहे हो, सर जो पढ़ा रहे हैं घर पे आओ, वापस से उस चीज को पढ़ लो, वीकली रिविजन्स, टेस्ट लिख लो, प्रीलिम्स लिखना है। एंड जब आप सेल्फ स्टडी में आ रहे हो तब आपका पूरा सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाना चाहिए, प्लस 1.5 डेज में भी आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। तो ये ऑल इंडिया रैंक होल्डर्स की स्ट्रैटेजी है कि वो डायरेक्ट टैक्स जैसे सब्जेक्ट को भी 6 to 7 times रिवाइज करते थे। आई रिसेंटली हैड द अपॉर्चुनिटी टू एक्चुअली इंटरव्यू ऑल इंडिया रैंक 2 फॉर इंटर सीए, एंड दिस वाज हिज स्ट्रैटेजी। 7 times he had read direct tax. So it is possible, you can do it. If he can do it, you can also do it. Just make sure कि जैसे जैसे सर पढ़ा रहे हैं या जहां से भी आप पढ़ रहे हो, साथ साथ आपकी भी सेल्फ स्टडी होती जा रही है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन सर इज कि अगर किसी को डीटी बहुत हार्ड लगता है, बहुत डर लगता है डीटी के सब्जेक्ट से, और उसको चीजें याद नहीं रहती, तो व्हाट शुड दे डू? सबसे पहले जब भी आपको कोई भी सब्जेक्ट हार्ड लगे, नॉट जस्ट डीटी, अब ये मैं कॉमन पॉइंट बोल रहा हूँ हर सब्जेक्ट के लिए, इंटर फाइनल दोनों के लिए। देखो जब भी कुछ बहुत बड़ा लगे ना तो इसका मतलब हमें ये है कि हमें उसको पार्ट पार्ट्स में तोड़ देना चाहिए। इट इज वेरी सिंपल, यस और नो, तभी जाके वो आसान लगेगा। एक साथ तो अगर कोई बोलता है मेरे को एवरेस्ट चढ़ना है तो एवरेस्ट भी एक साथ नहीं चढ़ा जाता, छोटे छोटे जगह पे पहुंच के बेस कैंप बनाना होता है। तो आपको भी डीटी के अंदर में सेम ये करना है, आपके टॉपिक्स को आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। नाउ लेट मी कम टू इंटर फर्स्ट। अगर हम इंटर की बात करें तो आपको क्या करना है, आपको 16 टॉपिक दिए, 16 टॉपिक इन टोटल दिए हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले इजी वन से चालू करो। अब आप बोलोगे सर इजी वन चैप्टर नंबर 1 है, नहीं, चैप्टर नंबर 1 बिल्कुल इजी नहीं है। चैप्टर नंबर 1 बिल्कुल इजी नहीं है, वो टैक्स कैलकुलेशन है। यही बच्चा बेसिक गलती कर देता है और वो अपना कॉन्फिडेंस लूज आउट करके रख देता है, ठीक है। तो सबसे इजी वाले चैप्टर सबसे पहले उठा लो। मतलब आपको क्या करना है, ए बी सी पार्ट में तोड़ना है। ए मतलब सबसे इजी वाले जहां से इंटरेस्ट मेरा डेवलप हो जाएगा, बराबर है। तो आपने सबसे पहले उठा लेना है कौन कौन सा सब्जेक्ट सर, रेसिडेंशियल स्टेटस उठा लो, एग्रीकल्चर इनकम उठा लो, क्लबिंग उठा लो, सेट ऑफ उठा लो। ये आराम से हो सकता है, राइट। और इसके लिए आपको कोई सीक्वेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिलीव मी, आपको कोई सीक्वेंस की जरूरत नहीं है इस चीज के लिए। प्लस रिटर्न ऑफ इनकम आप उठा सकते हो, या आप रिटर्न ऑफ इनकम को सबसे पहले भी उठा सकते हो इस पर्टिकुलर एबीसी में। तो ये हो गया आपका ए पार्ट। बी पार्ट है, अब आप थोड़ा सा हेड्स के ऊपर जाओ। सबसे पहले इजी हेड्स उठाओ, दैट इज एचपी, आईएफओएस एंड कैपिटल गेन। ये बहुत इजी हेड्स है, इनको सबसे पहले आप उठा लो। और इसी के साथ साथ अब आप क्या उठाओगे, इसी के साथ साथ आप डिडक्शंस उठा लो, क्योंकि वो एक आपको एडवांटेज क्रिएट कर देगा। जब आप इस बी कैटेगरी के बाद सी कैटेगरी में मूव ऑन होंगे, सी कैटेगरी में आपको करना चाहिए सैलरी, पीजीबीपी एंड टीडीएस। ये सारे बड़े टॉपिक वाले पार्ट हो गए, बराबर है। और इसी के साथ साथ एएमटी, क्योंकि वो कनेक्टेड टॉपिक है। तो अब आपने क्या किया, डीटी को 3 पार्ट के अंदर में ब्रेक कर डाला, और अब आप उसको एक एक करते जाओगे तो आपको आसानी होगी। सबसे लास्ट में करिए टैक्स कैलकुलेशन, बिकॉज जब आपकी टोटल इनकम कंप्यूट होगी उसके बाद ही टैक्स लायबिलिटी आएगी। नहीं तो आप क्या करते हो, हर बार सिर्फ चैप्टर नंबर 1 पढ़ते हो, तो ये ना करें। दूसरा, इंपॉर्टेंट सेक्शंस को याद रखें। देखिए हम सब जानते हैं कि आपने अगर 4 से 5 क्वेश्चन भी डीटी के सॉल्व किए ना तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कौन से सेक्शंस है जो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। जैसे पीजीबीपी में 32 पूछा जाता है, 35 पूछा जाता है, 35 एडी पूछा जाता है, 41 पूछा जाता है, 44 एडी पूछा जाता है। तो ये वाले सेक्शन को ना
या फिर अगर मान लो इसमें भी आपको कोई दिक्कत है, तो मैं आंचल मैम से आप सभी लोगों के लिए क्या करूंगा, एबीसी एनालिसिस की लिस्ट में हर बार अपने यूट्यूब चैनल पर डालता हूँ, सी विजय सारडा पे। मैं आंचल मैम के साथ भी शेयर कर दूंगा ताकि वो आप सबको ये शेयर कर सके। मैंने हर टॉपिक का एबीसी एनालिसिस दिया है। मान लो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है और आपको सिर्फ नो इफ नो बट ओनली कट टू कट वाला पढ़ना है, कोई बात नहीं, उतना एबीसी वाला पढ़ लो, उसमें सारा सेक्शन का सारा आ जाएगा, इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंटर फाइनल दोनों के लिए बनाया हुआ है, तो आपको टेंशन लेना नहीं है। व्हेन इट कम्स टू फाइनल, आप सभी को मैं बता दूं, आपको अपने पूरे फाइनल के ग्रुप को 4 पार्ट में तोड़ना पड़ेगा। पहला पार्ट है आपका पूरा इंटरनेशनल टैक्सेशन का। तो अगर कोई सीएमए सीए फाइनल दोनों भी है, ध्यान से सुनना, पहले इंटरनेशनल टैक्स का पार्ट खत्म करो। अब इंटरनेशनल टैक्स के पार्ट में आपको 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डीटीडब्ल्यूए, दूसरा ट्रांसफर प्राइसिंग, तीसरा एनआर टैक्सेशन। पहले इसके ऊपर ध्यान देते हो, बचे हुए जब मूड भी आ जाए तब भी कर लेना। 3 चैप्टर को जेन्युइनली अवॉइड कर सकते हो, बेप्स हो गया, उसके बाद में इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ट्रीटी हो गया, या फिर मॉडल टैक्स कन्वेंशन हो गया। इसको तो खैर आप बाद में भी करोगे तो भी चलेगा। यस। दूसरा दूसरा आप क्या करो, आपको करना चाहिए आपके हेड्स कंप्लीट। अब हेड्स में देखो, फाइनल वालों तुमको दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्योंकि तुमने ऑफिस में भी काम किया होगा, तो सारे हेड्स वाला पार्ट होना चाहिए, राइट, इंक्लूडिंग डिडक्शन, सेट ऑफ, क्लबिंग वाला पार्ट। तीसरा पार्ट आपने उठाना चाहिए असेसमेंट प्रोसीजर से लेके सर्च एंड सीजर वाला पार्ट। तो असेसमेंट प्रोसीजर, अपील, रिवीजन, रेक्टिफिकेशन एंड सर्च एंड सीजर वाला पार्ट। चौथे पार्ट में उठाना चाहिए असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज, जिसमें भी आपको चैरिटेबल ट्रस्ट सबसे पहले पढ़ना चाहिए, मैट एएमटी दूसरा चैप्टर पढ़ना चाहिए, तीसरा टैक्सेशन ऑफ सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट एंड इन्वेस्टमेंट फंड, खत्म। इसके अलावा कुछ चैप्टर ऐसे जो आपको कभी नहीं पूछे जाते, जैसे टैक्सेशन ऑफ एचयूएफ, टर्निश टैक्सेशन एक्सेट्रा, उसको आप सबसे एंड में रख सकते हो टाइम मिले तो, अदरवाइज आपने मैक्सिमम इंपॉर्टेंट पढ़ लिया। एब्सोल्युटली, आई थिंक सर ने अगला क्वेश्चन भी साथ साथ आंसर कर दिया है कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट चैप्टर्स एंड कॉन्सेप्ट्स। बिकॉज सर, आप इस पे कुछ ऐड करना चाहो तो आपके लिए मैं एक सवाल पूछ रही हूँ। एक स्टूडेंट ने पूछा है, मेरा एग्जाम सितंबर में है, बहुत ज्यादा डीटी की प्रिपरेशन नहीं हुई है, कोई ऐसे चैप्टर्स है क्या जो फॉर श्योर है कि मैं ये पढ़ के जाऊंगा तो पास तो हो ही जाऊंगा? नहीं, ये आपका सवाल गलत है। देखो, इसका जवाब कोई नहीं दे सकता, इंस्टीट्यूट इज इंस्टीट्यूट ओनली, है ना। मतलब इंस्टीट्यूट ऑल्सो ऑल्सो बिहेव लाइक निर्मला सीतारमन जी मेनी टाइम्स, जहां आप सोचते कुछ और है और लाइफ में मिलता कुछ और है। तो इसका जवाब कोई नहीं दे सकता, और मैं भी अगर इसका जवाब दूं कभी तो वो आप समझ लीजिएगा विजय सारडा मार्केटिंग कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, ये कुछ नहीं होता। और मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, इसका एक और तरीका खुद इंस्टीट्यूट ने दिया है। इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाओ, वहां पे टॉपिक वाइज वेटेज लिखा है हर चीज का, इंटर फाइनल दोनों लेवल का। टॉपिक वाइज वेटेज में जाके आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा कौन कौन सी चीज से कितने मार्क्स आते हैं। तो आपके पास खुद ये जवाब है ना, आपके पास खुद ये जवाब है जो इंस्टीट्यूट का दिया हुआ है। बट ऐसा कोई टॉपिक नहीं है कि हाँ यही टॉपिक आएगा इतने मार्क को आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी जवाब दूंगा तो आप मान के चलो मैं सिर्फ मार्केटिंग करूंगा, कोई मतलब नहीं है ये करके कि हाँ ये आएगा। तो आप अगर मेरे से जानना चाहते हैं तो मैं आपको बोलूंगा, खुद इंस्टीट्यूट ने आपको बताया, टॉपिक वाइज वेटेज देख लीजिए। लास्ट जो पेपर आया था अभी, वो भी उस वेटेज के हिसाब से ही आया था, फाइनल का भी इंटर का भी। तो आप वो देख लीजिए, दैट इज द ओनली सोल्यूशन। राइट, एब्सोल्युटली। सर, एक और सवाल आ रहा है कि जैसे स्टडी लीव होती है, तो नवंबर अटेम्प्ट स्टूडेंट्स की तो अब आने वाली है स्टडी लीव पीरियड जो फाइनल सीए के हैं, एंड जनवरी के लिए अभी थोड़ा सा टाइम है। तो स्टडी लीव पीरियड को कैसे यूटिलाइज करें, उस समय डायरेक्ट टैक्स को कैसे पढ़ना है? मैम आप मेरे को अलाउ करें तो मैं इसे पूरे ग्रुप के लिए बोलना चाहूंगा। जी जी। बच्चे भी अगर करें पूरे ग्रुप को समझने के लिए तो मैं ज्यादा बेटर तरीके से बता पाऊंगा। ये एक यस बेटर यस। स्ट्रैटेजी है। जो अभी बच्चे फाइनल और इंटर में भी आए हैं उनके साथ भी हमने यही स्ट्रैटेजी शेयर की थी, जो ऑल इंडिया रैंक्स में भी आए हैं। देखो, एक मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। आपका ना डेली शेड्यूल आज से ना, अगर आपको बोथ ग्रुप पास होना है, बिकॉज वी ऑलवेज फोकस ऑन बोथ ग्रुप, ठीक है। एआईआर तो खैर मतलब वो तो एक बहुत बड़ा लेवल ऑफ अचीवमेंट है। अगर आपको बोथ ग्रुप भी पास करना है, मैं आपको एक रामबाण इलाज देता हूँ, प्लीज सुनना, ठीक है। सबसे पहले आपको बोथ ग्रुप पकड़ना है। बोथ ग्रुप को 2 पार्ट में तोड़ा, ग्रुप 1 ग्रुप 2, बराबर है। अब मैक्सिमम बच्चे जो मेजर गलती करते हो क्या है, आज तेरा भाई अकाउंट्स पढ़ेगा और 10 घंटे में अकाउंट्स के 3 टॉपिक तो निपटा ही देगा। 3 घंटे बाद भाई को समझ में आता है भाई एक ही पेज पे है, ठीक है। तो गाड़ी तेरा भाई चलाएगा बोल के भाई गाड़ी की चाबी नहीं चालू करता, और उसके बाद फिर नींद आती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब मैं आपको एक बहुत फुल प्रूफ प्लान देना चाह रहा हूँ। सबसे पहली बात, आप ग्रुप 1, आप इंटर में है, फाइनल में है, मैं कॉमन स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ।
ग्रुप 1 3 सब्जेक्ट आपके पास में है, बराबर। अब आपको क्या करना है, इसको MWF में तोड़ना है। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, ये आप सिर्फ ग्रुप 1 पढ़ेंगे। उसके बाद में TTS के अंदर में ग्रुप 2 पढ़ेंगे, दैट इज ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे के दिन आप ग्रुप 2 पढ़ेंगे, ठीक है। प्लीज ध्यान से समझिएगा। सो MWF विल बी ग्रुप 1, एवरी सब्जेक्ट इन द ग्रुप 1 विल टेक 3 आवर्स, ठीक है। तो 9 आवर्स का इफेक्टिव स्टडी चाहिए। वो कहते हैं ना 16-16 घंटे पढ़ते हैं, तुमको नहीं चाहिए, तुम 9 अच्छे से पढ़ लो, काफी है, बराबर है। 16 की जरूरत ही नहीं है, बराबर है। अब मैं आपको इसमें प्रैक्टिस और थ्योरी दोनों का अच्छा पॉइंट बता के दे रहा हूं। तो चलो जल्दी से बताओ सभी लोग अगर जिंदा है तो, MWF में आपको क्या पढ़ना है? MWF में क्या पढ़ना है? ग्रुप 1। और TTS में आपको क्या पढ़ना है? ग्रुप 2 पढ़ना है, ठीक है। आपने सबसे पहले इसको डिवाइड कर दिया, बराबर। हर बार को पहले डिवाइड कर दो। अब MWF के अंदर में आपको 9 घंटे, ये सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं, मतलब मैं अज्यूम कर रहा हूं आपके कोई क्लासेस ये वो कुछ पेंडिंग नहीं है, ठीक है। ये स्टडी लीव की बात चल रही है। अब आपने क्या करना है, 3-3 घंटे एलोकेट करने हैं। अब ध्यान से सुनना जो मैं कहने जा रहा हूं। मंडे के दिन आपका सॉल्विंग नहीं होगा, सिर्फ लर्निंग होगा। मतलब 3 घंटा प्योर लर्निंग, नथिंग सॉल्विंग, सिर्फ पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। तो 3 घंटे के आप टारगेट लेके चलिए कि हाँ मेरे को 3 घंटे के अंदर में ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट करना है। और मेक श्योर करना है कि 3 घंटे के अंदर वो मोटे मोटे तौर पे कंप्लीट हो जाए। ट्यूसडे के दिन ग्रुप 2 का लर्निंग वाला पार्ट आएगा, बराबर। फिर आएगा वेडनेसडे, अब आपको वापस से ग्रुप 1 में आ गए। 3 घंटा सिर्फ सॉल्विंग, सॉल्विंग, सॉल्विंग एंड सॉल्विंग, जितना हमने पढ़ा उसका। ये एक परफेक्ट ब्लेंड हुआ, जितना पढ़ा उसको सॉल्व करने। इससे आप क्लास के क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे और जिस टीचर ने आपको क्वेश्चन बैंक दिया है वो भी सॉल्व कर पाएंगे, बराबर। वेडनेसडे के दिन कंप्लीट हुआ, थर्सडे के दिन आप ग्रुप 2 के सारे चीजों का प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हो, मतलब आपको टाइम पढ़ने के लिए भी मिला और सॉल्व करने के लिए भी मिल गया। फ्राइडे के दिन हम क्या करेंगे? फ्राइडे के दिन हम लोग और आगे का उस पर्टिकुलर चैप्टर का रीड प्लस सॉल्व दोनों करेंगे। मतलब यहाँ पे 1.5 आवर 1.5 आवर दोनों को इन्वॉल्व करेंगे, मतलब लर्निंग प्लस सॉल्विंग दोनों। अब संडे के दिन हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? संडे के दिन मॉर्निंग 8 बजे से लेके 12 बजे तक का आपका टाइम ग्रुप 1 का उस पर्टिकुलर चैप्टर का जो कुछ पेंडिंग है वो खत्म करने के लिए होना चाहिए। आप अगर बहुत ईमानदारी से देखेंगे ना, 9 आवर्स प्लस संडे के दिन 2 आवर्स, 11 आवर्स इज मोर देन सफिशिएंट कॉस्टिंग में, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जैसे टॉपिक को खत्म करने के लिए, डीटी में पीजीबीपी जैसे को खत्म करने के लिए, एफएम के अंदर में कैश को खत्म करने के लिए, कैश बजट अदर चीजों को खत्म करने के लिए। सेम उसी तरीके से 3 बजे से लेकर शाम में 7 बजे तक आपको संडे के दिन पढ़ना है। ग्रुप 2 का जो भी कुछ पेंडिंग है हफ्ते भर का वो वहां कंप्लीट करना है, खत्म। इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। एंड बिलीव मी, अगर 3 हफ्ते भी ये साइकिल को रिपीट कर लिया ना आपने, आपका काम खत्म हो जाएगा। मान लो संडे के दिन वो टॉपिक खत्म हो चुका है, तो संडे के दिन करो सुपर रिवीजन, जितना हफ्ते भर में पढ़ा है वो सब एक बार वापस से घुमा लो। कोई भी रैंकर जो कहता है ना मैंने 3-3 बार पढ़ा, 4-4 बार पढ़ा, वो यही स्ट्रैटेजी से पढ़ रहा है। वो हफ्ते को तोड़ रहा है 3-3 पार्ट के अंदर में। तो तुम जहां 3 दिन तक के सिर्फ अकाउंट्स को लेकर के बैठे हो ना, वो बंदा 3 दिन के अंदर में ग्रुप 1 भी आगे बढ़ा रहा है, ग्रुप 2 भी आगे बढ़ा रहा है, दोनों की प्रैक्टिस भी कर दे रहा है। वो तुमसे बस यही अलग है, टीचर उसने भी वही सिलेक्ट किए, बुक उसके पास भी वही है जो तुमने किया, कुछ अलग नहीं है। वो कोई नया चूरन नहीं खा रहा है ना। वो कोई यू नो अलग देश से नहीं आ रहा है, वो सिर्फ ये कर रहा है कि जो कर रहा है वो बहुत अच्छे से मैनेज करके कर रहा है, डिसिप्लिन। अगर आपने AIR 1 का इंटरव्यू भी कहीं ना कहीं सुना होगा ना, उनने बाकायदा इस चीज के लिए एक एक्सेल शीट बनाई थी कि मैं मंडे के दिन ये कर रहा हूँ, ट्यूसडे के दिन ये कर रहा हूँ, वेडनेसडे के दिन ये कर रहा हूँ, और पूरा एक्सेल शीट बना दो सिर्फ हफ्ते भर का, और हफ्ते भर सिर्फ वो करो। अगर आप 9 घंटे भी एलोकेट करोगे ना, तो उसके अलावा 5 घंटे आपके पास सेल्फ के लिए बचेंगे, जहाँ पे हेल्थ पे ध्यान दे सकते हो, खुद के ऊपर ध्यान दे सकते हो। थोड़ा टाइम उसको भी देना पड़ेगा, वो भी कहती है आई थिंक इट्स नॉट वर्किंग एनी मोर, उसके लिए भी नहीं नहीं भाई, मैं बड़ा क्लियर हूँ, उसके टाइम उसको भी टाइम देना है। तुम सीए बनने के बाद पैसा बहुत कमाओगे, उड़ाने वाली भी कोई चाहिए। इतना पैसा कमा के रखोगे किधर? वो टैक्स मांग लेगी निर्मला दीदी वापस, उससे अच्छा एक्सपेंडिचर क्लेम करना उसको घुमा के बिजनेस डेवलपमेंट एक्सपेंसेस के नाम से सेक्शन 37 में। राइट, एब्सोल्युटली, आई थिंक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है सर। आई यूज टू कॉल दिस द साइक्लिकल रिविजन स्ट्रैटेजी, ताकि कोई भी सब्जेक्ट पीछे ना छूट जाए। बिकॉज हमेशा ऐसे ही होता है स्टूडेंट्स के दिमाग में, मैं अकाउंट्स पढ़ रहा हूँ तो मुझे डीटी का टेंशन हो रहा है, डीटी पढ़ रहा हूँ तो लॉ का टेंशन हो रहा है, लॉ पढ़ नहीं, रहा हूँ तो ऑडिट आप का टेंशन हो रहा है।
बस तो आई बस। थिंक दिस इज अ परफेक्ट स्ट्रैटेजी वेर हम सारे कुछ सब्जेक्ट को। नहीं, हमको 6 सब्जेक्ट का टेंशन ही नहीं लेना है ब्रो। एक दिन में 3 ही होगा, उससे ऊपर नहीं एग्जैक्टली। होगा। 3 घंटे में एक ही होगा, उससे ऊपर नहीं होगा। राइट खत्म। राइट। एब्सोल्युटली। ये एंड लो। वो प्रॉब्लम जो आती है स्टूडेंट्स को कि 10 दिन, जैसे आपने कहा, 10 दिन बैठ के अकाउंट्स कर रहा है, 10-10 घंटे अकाउंट्स कर रहा है, बाकी सारी चीजों का पोर्शन पीछे छूट रहा है, याद भी नहीं आ रही ये चीजें, तो ये सारी प्रॉब्लम आई थिंक ये स्ट्रैटेजी से सॉल्व हो जाएगी। सो रियली रियली नाइस स्ट्रैटेजी सर। सर द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज कमिंग अप इज कि डीटी में सॉल्विंग कितना करना है। जैसे आपने कहा है कि 3 घंटे हम सॉल्विंग को देंगे, राइट? एंड number of sums are just too many, and sometimes when we are doing self study, तो सोचने में ज्यादा टाइम चला जाता है, तो वो 3 घंटे में कई बार होता है कि बस गिन चुन के कुछ सम्स हम सॉल्व कर पाते हैं। तो हाउ विल वी कवर द एंटायर सिलेबस? शुड वी सॉल्व ऑल दी सम्स? सम्स जो सॉल्व करने हैं वो कैसे सिलेक्ट करें? मैम देखिए, क्या होता है, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द टीचर ने, आई डोंट नो यहाँ पे सबने मुझसे पढ़ा या नहीं पढ़ा है, बट आई एम श्योर एक बात को तो मैं मानता हूँ कि हर टीचर है ना, अगर वो जैसे कोई भी कंसेप्ट के ऊपर 3 प्रॉब्लम ले रहा है, जैसे 35 AD पे उसने 3 प्रॉब्लम लिए, तो उसने क्लास में ही ना करते वक्त बच्चे ने क्या किया होगा, 3 में से 1 को इम्पोर्टेंट मार्क कर दिया होगा, बराबर है। तो एक उसने नॉर्मल पकड़ना है, और मतलब देखिए, अगर जैसे पर्टिकुलर चीज के ऊपर आपको 3 से 4 प्रॉब्लम है, मैं अकाउंट्स भी अज्यूम करता हूँ, एफएम भी अज्यूम करता हूँ कि किसी पर्टिकुलर कंसेप्ट के ऊपर आपको 3 से 5 प्रॉब्लम है, मैं कहता हूँ आप 1:4 का रेशो लगाओ। 1:4 का रेशो का मतलब है, या 2:4, अगर वो चैप्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है तो 1:4 या 2:4, वेरिन आपको क्या करना है, 4 को सॉल्व करना है और 2 को ऑडिट करना है, रादर देन 2 को सॉल्व करके 4 को ऑडिट करना। आपने 4 को सॉल्व करना है और 2 को ऑडिट करना है। देखो हम सब में से, मैं अज्यूम करता हूँ, सब एवरेज बच्चे हैं। एवरेज बच्चे मतलब कौन? हर वो बच्चा जो AIR 50s में नहीं है, हम सब एवरेज बच्चे हैं, ठीक है। अब अगर हम एवरेज बच्चे हैं ना, तो हमें प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। देखो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, इसको ऐसे समझो। 11th में जब तुम थे दोस्त, तो क्या होता था, तुमने 11th के पेपर में ना, देखो जब अकाउंट्स का पेपर था, जाते ही सबसे पहले लाइन मारनी शुरू कर दी थी पेपर में तुमने लाइन मारनी शुरू कर दी थी, क्योंकि तुम्हें ना माइंड में बड़ा क्लियर था, इधर डेबिट होगा, इधर क्रेडिट होगा, इधर ये होगा, इधर ये होगा, पहला क्वेश्चन इतना ही आएगा। ये क्यों हुआ था पता है? क्योंकि तुमने उसको इतनी प्रैक्टिस करी थी, इतने बार सॉल्व किया था, कि तुम्हारे माइंड के साथ साथ हाथों को भी पता था इधर डेबिट जाएगा, इधर क्रेडिट जाएगा, और तुमने 10 मिनट के अंदर में बैलेंस शीट को मैच कर दिया था। तुम बड़े खुश हो गए, भैया हाँ 15 मार्क का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आज क्या बदल गया भाई? अकाउंट्स के लॉ तो हम भी जब पढ़ रहे थे तब वही, और अकाउंट्स तो आज भी वही है। तो तुम्हारे साथ बदल क्या गया? अकाउंट्स इतना हार्ड क्यों लगने लग गया तुमको? प्रॉब्लम इज दैट कि तुमने पहले बहुत सॉल्व किया था, और अब तुम ऑडिट कर रहे हो अकाउंट्स को, ठीक है। चुपचाप 4 सॉल्व करो, रजिस्टर भरना ही चाहिए सॉल्व होते हुए, सॉल्व करना है, और बचे हुए 2 को ऑडिट करना है। वो 2 कौन से होंगे? जो नॉन इंपॉर्टेंट वाले, कि हाँ यार चल ये है, ये है, ये है। कॉस्टिंग और अकाउंट्स के लिए या एफएम के लिए बोलो, आपने फॉर्मूला बुक बनानी चाहिए। एक फॉर्मूला बुक, जैसे अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो EOQ/Q वाला एक फॉर्मूला आता है कॉस्टिंग में कुछ, तो बराबर है, वट एवर इट इज। आपने एक चैप्टर बनाओ, वहां पे फॉर्मूला लिखो, जो भी फॉर्मूला है फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला लिखने के बाद ना आप वहां पे ये चीज लिखो, भैया अगर ई मिसिंग है, क्यू मिसिंग है, तो वहां पे क्या होना चाहिए, कि मैं प्रॉब्लम में इमीडिएटली क्या ढूंढूं। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, स्मार्टली पढ़ने से होगा। पढ़ने से हो जाता ना बेटा, पूरे 1 लाख के 1 लाख पास हो जाते ना, है ना। पढ़ने से हो एब्सोल्युटली। जाता तो पूरे 1 लाख पास हो जाते। तो जो स्मार्टली पढ़ रहा है उसके लिए ये पूरा गेम है। तो आपको बस स्मार्टली पढ़ना है। अब क्या करो, रोज रात में सोने से पहले लेफ्ट और राइट स्वाइप तो कर ही रहे हो, बस पेज में भी लेफ्ट और राइट स्वाइप करना है आपको लाइफ में, ठीक है। वहां कुछ मैच होना हो, आपका आंसर ICAI में जरूर मैच हो जाएगा, मेरी गारंटी। क्योंकि आप फॉर्मूला 10 बार जब देख लोगे ना, रोज रात में सोने से पहले देखोगे ना, तो वो एग्जाम का जो फॉर्मूला बुक है ना, वो दृश्यम होगा। 2 अक्टूबर के दिन पाव भाजी खाई थी, बस दृश्यम होगा आगे पीछे पूरा। बनाओ फॉर्मूला बुक और फिर देखो, SFM में AFM में फॉर्मूला बुक बनाओ, फिर देखो क्या मजा आता है। एब्सोल्युटली। सर आजकल एक बहुत फोटोज वायरल होती है हर बार जब रिजल्ट आता है, सीए फाइनल का, सीए इंटर का, लोग इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, फेसबुक तो खैर आजकल ज्यादा कोई यूज नहीं करता है, बट लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पे
अपनी सारी किताबों का एक पाइल लगा देते हैं और उसके साथ फोटो खींचते हैं, सेल्फी खींच के डालते हैं कि देखो मैं आज चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गई आफ्टर सो मेनी बुक्स। तो मेरा आप सबसे अभी, वी हैव क्लोज टू 100 स्टूडेंट्स इन द रूम, सबसे चैलेंज है उन सब की जितनी बुक्स है उससे डबल आपकी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सारी बुक्स जो है ना, वो सिर्फ रीडिंग वाली बुक्स है। आपकी सॉल्विंग वाली बुक्स जब उसमें ऐड हो जाएगी ना, तो वो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ बुक्स बहुत ज्यादा हो जाएगी और हमें बढ़ाना ही है। सो प्लीज 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 ऑडिट करना बंद करो, उससे नहीं होगा। ऑडिट आर्टिकलशिप में कर लिया बस, एग्जाम में प्रैक्टिस करते वक्त ऑडिट नहीं करना है। सर कुछ मैं कहना इन चाहते सभी बच्चों को एक पॉइंट ऐड करूं, आई एम श्योर इट लुक वेरी फैसिनेटिंग कि मैंने मॉड्यूल इतने पढ़े। वो लोग बच्चे जितने भी ये फोटो लगा रहे हैं ना, ये मॉड्यूल लगा देते हैं। माँ कसम ना, उसमें से एक ने भी पूरा मॉड्यूल नहीं पढ़ा होगा। हैं? एग्जैक्टली। बुक पूरी लगाई है, बुक पूरी, वी ऑल नो दिस। ठीक है, मैं आपको जेन्युइनली बताऊं कि अगर तुमको जेन्युइनली इस तरह की कोई फोटो लगाने ना, अपने पेरेंट्स को बाजू खड़ा कर दो, ये दो थे इस वजह से मैं, और ये फोटो ना ज्यादा वायरल होगी एज कम्पेयर टू दैट फोटो। और दूसरी बात देखो, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हुए दे लैक मोटिवेशन। मैं तो सिंपल सी बात कहता हूं, अपने बापू का ना लोन स्टेटमेंट लो और अपने स्क्रीनशॉट पे लगा लो, अपना जो स्क्रीन गार्ड है ना उस पे लगा दो। किसी के कोई, यू डोंट नीड एनी विजय सारडा और यू डोंट नीड एनी आंचल मैम टू मोटिवेट। जेन्युइनली तुम्हारे को जिस दिन समझ में आ गया ना बाप का लोन इतना है और माँ का इतना गोल्ड घर पे पड़ा है, उस दिन तुमको जेन्युइनली सब समझ में आ जाएगा। ये जो फोटो है ना, मेरी हाइट के जितनी मैंने बुक पढ़ी, मैंने 2,400 लॉ पढ़े और मैंने ये किया वो किया, ये सबको समझ में आता है बे, ये तूने नहीं किया, ऐसा सबको समझ में आता है। ठीक है ना, जितने सीए स्टूडेंट है ना वो फोटो को देखते हैं ना, वो ये सब वो बोलते हैं ये फालतू की बातें कर रहा, साले मॉड्यूल भी लगा के रखा, खोला तो होगा ही नहीं तूने। ये मत करो, जेन्युइनली पेरेंट्स को बाजू खड़ा करो। अभी देखिए, आप रिसेंटली एक बच्चे की मॉम सब्जी बेचती थी, वो जा करके अपने मॉम को बताता है, और वो वाला वीडियो मुंबई से वायरल हुआ है। व्हाट अ फैंटास्टिक मोमेंट दैट इज, बिलीव मी। ये उन टाइगर हजारों फोटो टाइगर को ना लगी। एक मिनट में, उन हजारों फोटो को एक मिनट में निकल गया ये वीडियो, एक मिनट में निकल गया ये वीडियो। जब माँ लिटरली उस शॉप से उठी और बच्चे को गले लगा दी रोते हुए, एक मिनट में उन हजारों फोटो को निकल गया, बिलीव। मतलब वो बच्चा पास हुआ हुआ, उसका वीडियो ज्यादा सेंसिबल है, वो वीडियो ज्यादा देखा गया है एज कंपेयर टू दी वीडियो जो वो इंटरव्यू दे रहा है ना। एब्सोल्युटली। फीलिंग जरूर क्रिएट करनी है। तो मैं आपसे कहूंगा, देखो वो वाला फोटो डालो मत डालो, आपके मम्मी पापा के साथ रोते हुए का फोटो जरूर डालो, बिकॉज दैट इज द इमोशन यू लव टू शेयर लॉन्ग टाइम। या सर यस। थोड़ा सा वीडियो ऑडियो लैग हो रहा है, आई एम श्योर बिकॉज ऑफ द इंटरनेट। वहाँ पे बहुत बारिश हो रही है, आई वी अंडरस्टैंड। सो स्टूडेंट्स थोड़ा सा लैग होगा, लेट्स कोऑपरेट, टेक्नोलॉजी है। बट सर इज स्टिल हियर विद अस शेयरिंग ऑल हिज विजडम एंड इंस्पिरेशन विद अस। ओके, सो सर अगला क्वेश्चन है सितंबर अटेम्प्ट के लिए स्पेसिफिकली, बिफोर वी गो टू द लाइव Q&A। सो सितंबर अटेम्प्ट स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं, सर प्लीज हमारे लिए कोई स्ट्रैटेजी बता दीजिए। वी आर ऑलरेडी ऑन 25th of July। व्हाट शुड बी आवर अप्रोच फॉर द नेक्स्ट 1.5 month, जो भी हमारे पास टाइम बचा है, व्हाट शुड वी डू? या मैं इसके बारे में आपको बता दूं, देखो अगर आपको कंप्लीट करना है डीटी, तो मैंने मेरे तरफ से तो दो तीन चीजें डाल रखी है जिसको आप देख सकते हो। पहला, अगर आपको जल्दी से कंप्लीट करना है तो फास्ट ट्रैक पूरा का पूरा मैंने अपलोड करके रखा है, आप उसको देख सकते हो। राइट, 25 लेक्चर के अंदर में, 30 लेक्चर के अंदर में पूरा डीटी है। अगर आप 1.5 के हिसाब से भी देखोगे तो फाइनल इंटर दोनों का फ्री फास्ट ट्रैक मैंने मेरे यूट्यूब पर डाल रखा है। इसको आप 15 दिन इंटर के लिए और 20 दिन फाइनल के लिए लगा करके पूरा खत्म कर सकते हो। सपोज आपका ये भी हो चुका है, तो मैं आपसे कहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस में क्या करना है सर? प्रैक्टिस के अंदर में सैलरी के बड़े प्रॉब्लम उठा के डायरेक्ट सॉल्व करने हैं। अगर आपका इसके पहले एक अटेम्प्ट हो चुका है, तो मेरे हिसाब से अपने कंटेंट के ऊपर तो दिमाग लगाना नहीं चाहिए। कंटेंट आपने फटाफट 1.5 की स्पीड में सुन के खत्म कर देना चाहिए। आपका जितना टाइम है उसे प्रैक्टिस पे होना चाहिए। छोटे प्रॉब्लम उठाना नहीं, बड़ा प्रॉब्लम सैलरी के उठाओ, बड़े प्रॉब्लम उठा के सॉल्व 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 सॉल्व। जब आप सॉल्व करते जाओगे ना, तब आपको समझ में आएगा। कहीं अटके तो जाके कंसेप्ट देखो, अगर आपका अटेम्प्ट हो लग चुका है तो आपने तो क्या करना है, सिर्फ बड़े प्रॉब्लम उठाने और उसको सॉल्व ही सॉल्व करते जाना है।
अगर अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप क्या कीजिए, आपका पूरा सिलेबस फास्ट ट्रैक से फटाफट रिकॉल कर दीजिए। दूसरा, आप क्या कीजिए, आप प्रैक्टिस करिए। देखिए एक बात सिंपल मैं आपको बता दूं, डीटी इज ऑल अबाउट सॉल्विंग, और इसमें हर क्वेश्चन अलग होगा। अनलाइक कॉस्टिंग अकाउंट्स जहां पे क्वेश्चन रिपीट होते हैं विद द सेम फिगर, डीटी में कभी नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ द अमेंडमेंट। वेरी सिंपल पॉइंट, राइट? तो टाइप ऑफ क्वेश्चन सेम हो सकता है, क्वेश्चन ही सेम नहीं हो। तो देयर वुड बी अ सिमिलर क्वेश्चन विथ न्यू अमेंडमेंट्स, बराबर है? तो आप जितना ज्यादा सॉल्व करोगे ना, आपको स्टेप मार्क लेने में उतना बेनिफिट होगा, भले आपने अमेंडमेंट देखा हो या नहीं। दूसरी बात, आपने क्या करना है, आपने सर इसके अलावा दो काम और करने हैं। पहला, अगर आप फाइनल में है तो जुडिशियल अपडेट अच्छे से पढ़ के जाइए, राइट? इंटर में जुडिशियल अपडेट नहीं आता। दूसरा, ट्राई एमसीक्यू। आप इंटर फाइनल दोनों में है, आपने क्या करना है, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना है। सर एमसीक्यू की प्रैक्टिस कहां से करें? एमसीक्यू की प्रैक्टिस अगेन इंस्टीट्यूट ने खुद दे रखा है, बहुत सारे एमसीक्यू आप वहां से कर सकते हैं। आई एम श्योर आपके टीचर ने दिया होगा, आप वहां से कर सकते हैं, राइट? तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस इज वन सच थिंग। अगेन एमसीक्यू सिमिलर कभी नहीं आने वाले, पर आप जब एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो आपको कभी ये डर नहीं रहेगा कि मेरे को पता ही नहीं है एमसीक्यू आते कैसे। उसमें से कुछ तो सिमिलैरिटी के पॉइंट्स आपको पता होंगे कि हाँ यार, इस टॉपिक से थ्योरी वाले क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू में, इस टॉपिक से प्रैक्टिकल वाला पार्ट आता है, तो आप वो सेक्शन और वो पर्टिकुलर पार्ट मेंशन करके जाएंगे। एब्सोल्युटली। सर एक और क्वेश्चन है एंड दिस इज रिलेवेंट फॉर एवरीवन, कि जो पहला 15 मिनट है रीडिंग टाइम, उसको कैसे यूटिलाइज किया जाए? अरे ये क्वेश्चन तो मैं खुद जवाब देने वाला था अगर आप नहीं पूछते मैम। तो पहले 15 मिनट को कैसे इस्तेमाल करें? पहले 2 मिनट ना रिलैक्स होना है। आई एम श्योर सब लोग बोलेंगे ये क्या बोल रहा है, 2 मिनट रिलैक्स ही होना है, कुछ नहीं करना है ना? अंडरस्टैंड, हम किसी भी सिचुएशन में रहे, पेपर बहुत ज्यादा टफ आ जाए, जब आप पेपर देने जाते हो ना तो बहुत एनेक्सिटी होती है। और ये तो क्या होता है, ग्रुप का लास्ट पेपर होता है और फाइनल में सेकंड ग्रुप का फर्स्ट पेपर होता है। तो आपकी जो एंजाइटी होती है ना वो बहुत ऊपर होती है पहले 2 मिनट। और इस पे ना मैं टाइम डिवाइड कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान से सुनना। 2 मिनट सिर्फ अपने आप को काम करना, पेपर लेना और पेपर को सिर्फ देखना, नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, कोई पेज मिसिंग तो नहीं है क्वेश्चन पेपर के अंदर में, क्योंकि ऐसा हुआ है बहुत बार। तो कोई क्वेश्चन पेपर में मिसिंग तो नहीं है। जीटी के पेपर लेंदी आते हैं, ये बात समझ के चलना। तो आपने सिर्फ फटाफट पेज नंबर पलट के देख लेना, हाँ क्वेश्चन पेपर सारा दिख रहा है, इतना इतना पेपर दिख रहा है। अब 2 मिनट के बाद अगले 3 मिनट आप इन्वेस्ट करेंगे डीटी के पार्ट को पढ़ने के लिए, क्योंकि अगर आप इंटी में इंटर में है तो आपका डीटी एंड जीएसटी का एक ही पेपर बनेगा, पार्ट ए पार्ट बी करके। तो आपने ये देख लेना पार्ट ए कितना है, फाइनल के अंदर में है तो आपको टोटल पेपर एक साथ ही मिलेगा। अब आपने क्वेश्चन देख लिया, नंबर ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं 6। अब आप 3 मिनट के अंदर में ये देख पाएंगे कि काय काय का क्वेश्चन है, बराबर है? यहां तक आप पहुंच गए 5 मिनट पे। 5 मिनट के बाद अगले 3 मिनट आप इन्वेस्ट करिए, ठीक है? और ये टेंटेटिव है, मतलब ऐसा नहीं बहुत स्ट्रिक्ट जाना है। अगले 3 मिनट आप इन्वेस्ट करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट दिख रहे हैं, तो पहला काय का दिख रहा है, तो आप बस पेंसिल लीजिए, क्योंकि बाद में आपको ये मिटाना पड़ेगा। पेंसिल लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 में डायरेक्ट नीचे जाके देखना है। मैंने क्या कहा, जब भी देखो पहले नीचे देखो, तुरंत नीचे जाके देखना है। अच्छा क्या दिख रहा है, टोटल इनकम, तो बाजू में सिर्फ लिख दीजिए टीआई, टीआई एंड टैक्स लायबिलिटी, बराबर है? बाकी हम सब बाद में देखेंगे, हेड कितना है क्या है सब बाद में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 काय का दिख रहा है, अच्छा ये दिख रहा है मेरे को इंटरेस्ट कैलकुलेशन, वापस से नीचे देखो, थ्योरी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी। ये जरूर देखना कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौन सा नहीं, क्योंकि पेपर में क्लियर लिखा होता है, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 विच इज कंपलसरी एंड सॉल्व एनी 4 आउट ऑफ दैट। तो ये जो 3 मिनट है ना, ये आपको हेल्प करने चाहिए। अच्छा क्वेश्चन नंबर बी के ए बी और सी दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी ए बी सी दिख रहा है, तो जब आप क्वेश्चन देखेंगे ना आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, यार बी थोड़ा सा इजी लग रहा है, 3 हार्ड लग रहा है, 3 हार्ड लग रहा है, इजी लग रहा है। यहाँ पे आपका डिसीजन बन जाएगा आपका सीक्वेंस क्या होना चाहिए। आप 8 मिनट तक पहुंच चुके हैं। अगले 4 मिनट जो क्वेश्चन आपको सबसे हार्ड लगा था, राइट, उसके एडजस्टमेंट्स को देखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का ए बी और सी आपको हार्ड लगा था, तो आपको जितने पॉइंट उसके ध्यान में आ रहे हैं, और मैं कह रहा हूं लास्ट वाले क्वेश्चन को सबसे पहले उठाना, क्योंकि तब तक पहुंचते तक आपका माइंड बहुत जाम हो चुका होगा। तो लास्ट वाले क्वेश्चन में जितने पॉइंट आपको याद आते हैं बस पॉइंटर लिखना, उसमें पॉइंटर, जैसे ट्रू और फॉल्स होगा, अलाउड डिसअलाउड वाला पीजीबीपी क्वेश्चन होगा, तो आपने लाइन रीड कर दी, हाँ अलाउड है डिसअलाउड है,
सिर्फ पॉइंटर वहां पे आप मेंशन कर देना, ठीक है। यहाँ 12 मिनट तक पहुंच गए। अगले 3 मिनट आपको बड़े शांति से लगाना है सीक्वेंस। सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं रूल नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 1 को सबसे पहले ही सॉल्व किया जाए, है ना। कहीं ये रूल नहीं है कि भगवान का नाम पहले आए। आधा भारत राधे श्याम पहले बोलता है ना, और आधा भारत यू नो राधे राधे मतलब शिव पार्वती और पार्वती एंड शिव दोनों तरीके से यूज किए जाते हैं। हमारा क्वेश्चन पेपर भी बिल्कुल वैसा ही है, कोई कहीं रूल नहीं है पहला क्वेश्चन पहले सॉल्व हो, ठीक है। तो आपको जो सबसे पहले सॉल्व लग रहा है, बड़ा इजी लग रहा है, जिसके पॉइंटर सबसे पहले याद आ रहा है, जाने का सबसे पहले मेंशन कर देने का। कुछ बातें बड़े अच्छे से याद रखे। क्वेश्चन नंबर सबसे ऊपर बीच में लिखना है, बराबर बीच में, पेपर के मिडिल में आपको लिखना है। लेफ्ट और राइट में पेज के लाइन मार देना ताकि आपका सीक्वेंस थोड़ा सा ढंग का दिखे, हैंडराइटिंग ढंग की हो नहीं हो, ठीक है। ब्लैक पेन यूज करना है, याद दिला दूं मैं आपको, बराबर। उसके बाद आपने क्या करना है, चालू पड़ जाना है क्वेश्चन नंबर को लिखते लिखते। आंसर शीट का जो लास्ट पेज है ना बेटा, हो सकता है जो एग्जामिनर आए वो बहुत कड़क आए और बोले आपको पेपर में लिखना अलाउड नहीं है। आंसर शीट का जो लास्ट पेज है ना, उसको लिख देना रफ, और वहां लिख देना दनादन दनादन पेंसिल से। एंड में जाते जाते ना अपने सब रफ कर देना, कट कर देना, खत्म, रफ पेज बोल करके। तो वहां पे भी लिख सकते हो, ये एक शॉर्टकट बता रहा हूं, ठीक है। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं, आपके पास अब भी 2 मिनट है। अब ये जो 2 मिनट है ना, वो आपने बड़े शानदार तरीके से यूज करना है। सर कैसे करना है, अपने आप को याद दिला करके कि बॉस मेरे पास 1.8 मिनट पर मार्क्स है। 3 घंटा मतलब 180 मिनट डिवाइडेड बाय 100 मार्क्स, 1.8 मिनट पर मार्क। तो 5 मार्क का अगर क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेटली 9 मिनट लगने चाहिए, उससे ऊपर नहीं लगना चाहिए। जहां 9 मिनट 5 मार्क के लिए खत्म हुआ, आपने वहीं उस क्वेश्चन को छोड़ देना, जितना है उतना, और आपने तुरंत आगे बढ़ जाना चाहिए। नहीं तो यू विल ऑलवेज हैव अ कंप्लेंट कि 100 में से मैं 80 का सॉल्व करके आया हूं, और तू 80 का सॉल्व करके आके क्या कहेगा, तेरे को 40 चाहिए। बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, है ना। तो अपने को ये हरकत नहीं करनी है। 100 का अगर पूरा अचीव करना है पेपर, तो याद रखना 1.8 मिनट पर मार्क का रूल है, उतना ही अपने को दिमाग लगाना है। राइट। एंड आई थिंक सर जो भी आपने अभी कहा है, ये सारी चीजें एग्जाम में जाने के बाद डायरेक्टली अगर आप कोशिश करोगे तो नहीं होने वाली है। जैसे कि सर ने 11th स्टैंडर्ड का एग्जाम्पल दिया कि तुम इतनी बार उस चीज को प्रैक्टिस कर चुके थे कि एग्जाम हॉल में बैठते ही तुमने पेन पेंसिल लेके चालू कर दिया। एंड अब मैं सोच रही हूँ तो हाँ सर, मुझे भी याद आ रहा है कि मैंने भी किया है ये 11th स्टैंडर्ड में, कि जस्ट जाते ही आई हैव स्टार्टेड क्रिएटिंग द फॉर्मेट्स इन अकाउंट्स, आई हैव डन दैट। बट उसका रीजन वही था कि बहुत सारे बार उस चीज को सॉल्व किया है, प्रैक्टिस की है। तो ये जो रीडिंग टाइम है, ये जो 100 मार्क्स का पेपर है, it is extremely important that you are all putting yourself in that exam like scenario beforehand. एग्जाम वाले दिन जाके कोई चमत्कार नहीं होने वाला है, ठीक है, कि बस अभी जो विजय सर ने बता दिया तुमको 2 मिनट 3 मिनट 3 मिनट 3 मिनट आएगा। ठीक है, सो प्लीज गिव योर सेल्फ दैट अपॉर्चुनिटी। जी सर। मैम मैं एक और पॉइंट बोलना चाहता हूँ जो आपके सवाल में नहीं था। बेटा सुनना, अगर तेरा सितंबर अटेम्प्ट है ना, तो एक फ्री एडवाइस मेरे आंचल मैम के दोनों की तरफ से, हम दोनों ने इस डिग्री को कंप्लीट किया है, इसलिए हम दोनों एज ए टीम आपको कुछ कहना चाह रहे हैं। तेरे सितंबर, ध्यान से सुन, मैं बहुत धीरे कह रहा हूँ, पता नहीं चलना चाहिए गाँव में। तेरे सितंबर अटेम्प्ट तक ना, सितंबर अटेम्प्ट तक या जनवरी अटेम्प्ट तक किसी के फटे में टांग मत डाल। तेरे दोस्त को प्यार नहीं मिल रहा, ये उसका प्रॉब्लम है, तेरा नहीं। तेरे घर पे फाइनेंशियल इशू है, तू कुछ नहीं कर सकता। तेरे घर पे कोई बीमार है, तू डॉक्टर नहीं सीए बन रहा है। समझ आ रहा है। और तेरा प्यार तुझे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, उसकी बहन को फंसाएंगे सीए बनने के बाद। समझ रहा है तू। टेंशन नहीं लेने का, सब मिलेगा। सीए बन जा, सब मिलेगा, है ना। तो किसी के फटे में टांग नहीं डालना। दोस्त को चाय पीने जाना है, तू नहीं पीता है ब्रो, तेरे को नहीं पीना है। लाइब्रेरी में किसी लड़की को कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है, कि दीदी का प्रॉब्लम है, तेरा नहीं। वो दीदी अपना हैंडल कर लेगी, और उस दीदी के पास बहुत सोर्सेज है।
इनकम ऑफ 5 सोर्सेस के अलावा भी सोर्सेस है, तेरे पास एक भी सोर्स नहीं है, वो बनाना है। समझ आ रहा है? तो बिल्कुल किसी प्रॉब्लम में मत फंस, अपने प्रॉब्लम में भी मत फंस, दुनिया के सारे प्रॉब्लम। और मैं तेरे को एक बात बताऊं, तेरे घर के जितने भी प्रॉब्लम है ना, एटलीस्ट घर वाले तेरे को तो कॉल नहीं करने वाले। तो अपने आप को इंपॉर्टेंस देना बंद कर, तू उनके लिए लाइबिलिटी है साले, एसेट नहीं, कब समझेगा? है ना? ये बेस्ट एडवाइस पकड़, पढ़ना तो है, ये तेरे को भी मालूम है, ये बेस्ट एडवाइस है हम दोनों की तरफ से। हाँ, आज तो से मैंने कुछ बहुत सारी, बोला। नहीं नहीं सर, आप बहुत सारी पास्ट की चीजें याद दिला रहे हैं, बिकॉज मेरे डैड ने एग्जैक्टली मुझे यही कहा था। इस तरीके से नहीं कहा था, बट हाँ उन्होंने यही कहा था कि देखो, जब तुम्हारे दोस्तों को ब्रेक लेना है, तब वो तुम्हारा ब्रेक नहीं बन जाता है। उनको ब्रेक लेना है, उनको ब्रेक लेने दो। तुम तब ब्रेक लो जब तुमको ब्रेक लेना है, राइट? सो आई थिंक विजय सर हैज पुट इट इन अ वेरी नाइस वे फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड। बट हाँ, मुझे मेरे पापा याद आ गए व्हेन आई वाज अ सीए स्टूडेंट। सीए फाइनल की बात है, क्योंकि मैक्सिमम फ्रेंड्स थे, काफी सारे फ्रेंड्स थे जो सीए कर रहे थे, बट उसमें से काफी सारे ऐसे भी थे जो सीए से ड्रॉप आउट ले चुके थे, बिकॉज मैं सीए फाइनल में थी। तो उनका इंटर सीए नहीं हुआ, अटेम्प्ट लग गए, तो उन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया, ये वो एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अब सडनली, बिकॉज दे आर नॉट अ सीए स्टूडेंट, दे एक्सपेक्ट कि दुनिया अवेलेबल होनी चाहिए। बट मैं तो ठहरी सीए स्टूडेंट, अब मैं तो हर सैटरडे संडे जाके पार्टी नहीं कर सकती, राइट? तो वो सारा कॉम्प्रोमाइज, वो सारा सैक्रिफाइस जुलाई का ही महीना था, बिकॉज मैं अटेम्प्ट दिया था सीए फाइनल। जिस दिन रिजल्ट आया, किसी को कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ी, रिजल्ट वॉज इनफ। वो एक स्टेटस अपडेट, तब ना फेसबुक बहुत ज्यादा फेमस था, ओके? एक स्टेटस अपडेट, आंचल झुंझुनवाला से सीए आंचल झुंझुनवाला, बस आ गई दुनिया मेरे कदमों में, ठीक है? तो तुम्हारे साथ भी और वही है। और जो लोग ये सोच रहे हैं ना हम दोनों को देख करके कि भैया सर हमारी तो है ही नहीं, फिर ये एडवाइस हमारे लिए है क्या? बेटा बहुत अच्छी बात है, तेरे कोई लाइबिलिटी नहीं है, कोई तेरे को पूछने वाला ही नहीं है, मेरे बाबू ने खाना खाया क्या, तू अपने मर्जी से खा सकता है, तो तू टेंशन ही मत ले। नहीं है तो तू ज्यादा सुखी है, क्योंकि जिनके है ना वो ज्यादा परेशान है बेटा। है ना? तो तू तो मस्त है पागल, तेरे लाइफ में लफड़ा ही नहीं है। समझ में आ रहा है? तो जिसके नहीं एब्सोल्युटली। है ना, सर हमारी लाइफ में तो है ही नहीं। अबे बहुत अच्छा है, नहीं है तू बहुत सुखी है, तेरे को सच बता रहा हूँ, माँ की कसम, उसकी भी माँ की कसम तेरी। है ना? No distractions is the way, is what sir is saying. ठीक है, बहुत अच्छी बात है। Okay, we have hardly 2 minutes left before we will close this webinar. तो किसी का कोई सवाल है? We have time for just 2 questions. अगर कोई लाइव सर से पूछना चाहता है तो प्लीज अपना हैंड रेज कर दो। I will unmute you and you can directly talk to sir and ask him a question. Is there anyone who wants to do that? Otherwise मैं तुम्हारे तरफ से फाइनल एक सवाल पूछ लूंगी सर को। यार, सितंबर के लिए स्ट्रैटेजी सर दे चुके हैं ऑलरेडी। आप लोगों ने अगर नहीं सुना है तो ये सारा लाइव हो रहा है यूट्यूब पे। मोहित प्लीज यूट्यूब चैनल की लिंक दे दो जहाँ पे ये लाइव हो रहा है, ताकि स्टूडेंट जाके बाद में भी सर की सारी स्ट्रैटेजीज सुन सकें। ओके, ओम प्लीज अनम्यूट। हेलो सर। जी ओम, मैं ओम पवार हूँ सर। क्वेश्चन। सर मैं आपका ही स्टूडेंट हूँ। मैंने लास्ट ईयर आपका मतलब अभी सिलेबस बदलने से पहले आपका रेगुलर लेक्चर स्टूडेंट भी था। अभी मैंने रेगुलर बुक सेट भी वापस से परचेज की। तो मुझे एक जानना है कि मैं सीए में इंटर स्टूडेंट अभी दिसंबर अटेम्प्ट देने वाला हूँ, एक ही ग्रुप देने वाला हूँ। तो उसके लिए स्ट्रेटेजी कैसे पढ़ाई करूँ, क्योंकि मैं जब भी डीटी खोलता हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है सब आता है, पर जब सॉल्व करने बैठता हूँ ना तो थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। वन स्टेप सोल्यूशन है उसका, सॉल्व मोड। मतलब उसका एक ही सोल्यूशन है बेटा, सॉल्व मोड। बिकॉज जब तुम देखो तुम्हें दिक्कत कहाँ आ रही है सॉल्विंग में, वो एक ही चीज से क्योंकि सुधर मैं सकती है, अगेन सॉल्विंग। जब मैं आपका फास्ट ट्रैक देखता हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मुझे आपके साथ सॉल्व करता हूँ मैं तो ये ऐसा समझ लगता है। गया बेटा, मैं ये समझ गया कि शायद तेरे कंसेप्ट क्लियर है, बट प्रॉब्लम आ रहा है प्रैक्टिसिंग में। तो एक बार आप प्रैक्टिस करने का ट्राई करो तो आपका काम हो जाएगा।
आप एक वीक तक के सिर्फ प्रैक्टिस 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 करो, जहां अटको सिर्फ वहां कंसेप्ट को देखो, तो आपका काम हो जाएगा। एब्सोल्युटली सर। ये ना एक बहुत मॉडर्न डे प्रॉब्लम है जो आपने अभी टच किया है कि जब आई थिंक जब आप भी सर सीए कर रहे होंगे, जब मैं भी कर रही थी सीए, रिकॉर्डिंग्स वाज नॉट अ कॉन्सेप्ट। लेक्चर मिस हो गया तो मिस हो गया, अगर नहीं समझ में आया खुद से देख रहे हैं, हम सॉल्व कर रहे हैं, उसको रिवाइज कर रहे हैं, तो भी हम सॉल्व कर करके रिवाइज कर रहे हैं। अभी प्रॉब्लम क्या हो गया है, एवरीथिंग इज रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग। तो बच्चा क्या करता है, सॉल्विंग छोड़ के इजी वे आउट, रिकॉर्डिंग चल रही है, मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है पढ़ाई कर रहे हैं, 8 घंटे हम क्लॉक कर रहे हैं, लेकिन फायदा क्या हो रहा है, फायदा कुछ भी नहीं हो रहा है क्योंकि हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो ओम, आई होप आपको सर की बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि आपको फोकस करना है सॉल्विंग पे, प्लीज सिर्फ देखने पे फोकस मत करो। ओके, पी बी करके कोई तो है। सर लास्ट क्वेश्चन, जैसे कि मैंने कहा था सिर्फ 2 क्वेश्चंस लूंगी। सो यस, बताइए। हेलो सर, मोस्टली टेस्ट सीरीज पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज होती है, कोई भी इंस्टीट्यूट या जैसे लोकल कोचिंग या वैसे, तब हम कैसे MWF और TTS फॉर्मूला अप्लाई करें? तब तो हमारी टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन नहीं होगी तो बर्डन भी होगा ना। मेरे हिसाब से देखिए, अगर आपने टेस्ट सीरीज को लगाई भी है जिसके अंदर में पोर्शन वाइज टेस्ट सीरीज होगा, तो आपको आपके डे से ना, हमने हमारा शेड्यूल जो रखा है वो 9 घंटे का रखा है, जबकि इफेक्टिवली आप 14 आवर्स तक के वर्क कर सकते हैं, 14 घंटे तक के आप आराम से वर्क कर सकते हैं। तो जो एडिशनल 5 से 6 घंटे आपको मिल रहे हैं ना, वो उस टेस्ट सीरीज को आप एलोकेट कीजिए। एंड मोर ओवर, अगर आप इन शेड्यूल को फॉलो करते हैं ना, तो मुझे नहीं लगता, अच्छा, आप जब MW TTS भी फॉलो कर रहे हैं, तो आप वो टॉपिक उठा लीजिए जो आपके पोर्शन वाइज टेस्ट सीरीज को मैच करते हो, तो आपका दोनों सोल्यूशन हो जाएगा। आप पोर्शन वाइज टेस्ट सीरीज के लिए भी रेडी हो जाओगे और MW TTS भी हो जाएगा। यस सर, लेकिन वहां पर ऐसा होता है कि 15 दिन में 15 दिनों तक अकाउंट्स चलेगा, फिर लॉ की टेस्ट होगी, फिर DT IDT, उस प्रकार से तब हम हाँ, तो अकाउंट्स। आप उसके लिए क्या कीजिए, जब वो टेस्ट होने वाला है तो उसके लिए 3 से 4 घंटा अलग रखिए। ये जो 9 घंटे का अपना सेशन है, ये बिल्कुल अलग रखना है। और उसके लिए जो आपको एडिशनल प्रिपरेशन देनी है, आप वो कर लो। जैसे हमारे पास एक स्लैक डे पड़ा है संडे, तो आप संडे के दिन को अच्छे से यूटिलाइज कर लो। यस, किसी दिन मान लीजिए आपका टॉपिक MW TTS के अंदर में जल्दी खत्म हो जाता है, राइट, तो आप वो कर लो। कहीं देखो, टाइम में से टाइम निकालना पड़ेगा, सेपरेट टाइम आपको कभी नहीं मिलने वाला। जितना टाइम है उसमें से ये खींच के निकालना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। Absolutely. So, all right, I think we are at the end of the webinar. It is already 10 p.m. So, thank you so much, Vijay sir, for your time, effort, energy, strategies, golden nuggets for all the students. Give me a cheer in the chat box. Chat box. Say thank you, Vijay sir, for his time and sharing all these concepts and strategies with us. That is going to make our direct tax journey romantic. जब आप मुझे थैंक यू बोले, आंचल मैम को भी बोलना जरूरी है, बिकॉज इट वाज हर इनिशिएटिव टू मी हियर। एंड मैं आपको एक बात बता दूं, ये सेशन खत्म करते ही मेरा फ्लाइट है, मुझे भागना है। बट जस्ट मैम ने कहा इसके लिए हम लोग यहाँ हैं, तो मैम को भी बहुत बहुत थैंक यू। एंड इट वाज लवली टू मी। किसी को किसी को जवाब देंगे तो किसी को गुलाब देंगे, वक्त आएगा तो सबको हम जवाब देंगे। Superb. Thank you so much, sir, for being with us today. Thank you so much. Have a safe journey ahead. Thank you, sir. ठीक है, ठीक है। All बाय right. बाय। Bye, sir. Bye. Everyone, this entire recording is available on YouTube Live. We are doing this YouTube Live simultaneously. देखिए, Mohit from My CA Mentor has already put the YouTube link in the chat box. So go ahead, watch the recording. सर ने काफी सारे important chapters, concepts के नाम लिए हैं, ABC analysis भी किया है, but I know it went a little fast. तो आप पॉज और प्ले करके वापस से इस वीडियो को देख सकते हो। जस्ट गो अहेड एंड सी द वीडियो। ओके, भव्य, आपका क्या था सवाल? एक सेकेंड मैम, प्लीज गिव एन आंसर। ओके, आई डोंट नो व्हाट वाज योर क्वेश्चन, बट एनीवे आई, जो भी क्वेश्चंस अगर आपके
पेंडिंग रह गए हैं तो यू कैन रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम. हमारा इंस्टाग्राम चैनल है. आई एम ऑल्सो ओके टू शेयर माई व्हाट्सएप नंबर. ओके, आई एम गोना जस्ट शेयर माई व्हाट्सएप नंबर. सो अगर आप लोगों को स्टडीज में कहीं भी कोई भी दिक्कत आ रही है, आई एम अ मेंटोर फॉर CA स्टडीज, सो you can reach out to us and we will help you. Okay, I'm giving you all my WhatsApp number. Just note down. जिसको भी चाहिए, you guys can actually send me a hi on WhatsApp. Okay, note कर लो. 91673 मैं लिख भी देती हूँ. 91673 49309. Yes, thank you, Mohit. So you all can reach out to me on WhatsApp. अगर आप लोगों की कुछ भी queries है, questions है related to planning your studies, time management strategies, stress management, अगर आपको test series purchase करना है, अगर आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है, go ahead, reach out to me on WhatsApp. Okay, but for those of you who are still here, send me a hi on WhatsApp, yaar. A few of you, whoever wants to stay connected, send me a hi on WhatsApp. I have my WhatsApp open. I have hundreds of students who are already connected with me on WhatsApp. Go ahead, send me a hi on WhatsApp. Jaldi. Send me a hi on this number and I will save your number. Okay. Okay, मुझे आ गए हैं messages कुछ लोगों के. Prateek has sent a hi. I can see Yash Agarwal has sent a hi. Darshita Bang, Prateek Mohadikar, Mahima, okay. Darshita, all right. Who else? Who else is here? Smith Shah, okay. तुम लोगों के मैसेजेस बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं. मैं एक एक खोल के देख रही हूँ. प्रियल भंडारी, okay. I've received your message. और कौन है? ठीक है. वेदांत है, स्नेहा है. Yes, I've got your messages. Yes. I've got all your messages. Yasir. Okay, who else? Shrishti Kesarwani. Yes, I've got messages from a lot of you. अभी भी messages आ रहे हैं, so go ahead, send me a WhatsApp. YouTube पे जरूर subscribe कर देना and go and see the recording again. टेलीग्राम की लिंक मैं आप लोगों को भेज रही हूँ बिकॉज सर ने प्रॉमिस किया था ABC एनालिसिस सर देंगे, तो प्लीज टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर लो. आप लोगों ने अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो मैं वहां पे वो डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगी. ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन. आई विल सी यू अगेन वेरी वेरी सून with other exciting webinars from my CA mentor. Do reach out to us if you would like mentorship for your CA exams, if you would like test series for your CA exams. We will be providing you with the same. Thank you so much everyone. Bye bye.